Hello children, I am Poonam Bagga back again with chapter 3 Playing with Numbers. In our last class we discussed about the highest common factor of two or more given numbers and we also discussed different methods of finding the HCF. Today we will be using that discussion and doing exercise 3.6. Here is the first question. Find the HCF of the following numbers. Now we have some numbers. Here it is 18 and 48. We have to find their HCF. We will be using the prime factorization method. In this, we will be finding the prime factors of these given numbers and then we will be selecting the common factors and out of those we will get the highest common factor. Okay. So, first of all, we will write the prime factors of 18. कैसे करते हैं 18 दिया एक वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करते हैं 18 2 से डिविजिबल है इवन नंबर है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे स्टार्ट करते हैं 2 9 18 अब 9 3 की टेबल में आता है 3 3 9 एंड अगेन 3 1 3 यहाँ जब तक 1 ना आ जाए डिवीजन पार्ट में हम ऐसे फैक्टराइजेशन करते रहेंगे तो 18 के लिए हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 3 2 into 3 into 3 okay then we have the number 48 48 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इवन नंबर है 2 से करेंगे 2 2 4 2 4 8 अगेन 2 12 24 2 6 12 and then 2 3 6 लास्ट में 3 1 3 जल्दी से करना है फटाफट और बिल्कुल सही करना है याद रखिए नाउ वी कैन राइट फैक्टर्स ऑफ 48 प्राइम फैक्टर्स 2 2 2 4 टाइम्स 2 into 2 into 2 into 2 into 3 okay now we will look for common factors to write down the HCF of these given numbers. You can see this 2 is the common factor, 2 common है और उसके बाद आप देखेंगे ये 3 भी common है यहाँ पर और बीच में ये जो 2 है ये ऊपर नहीं है और ये 3 नीचे नहीं है तो सिर्फ दो ही नंबर्स कॉमन है 2 और 3 और इनका प्रोडक्ट हमें HCF दे देगा तो 2 into 3 it is 6 and remember the HCF of any two given numbers is always less than the given numbers ये 6 जो HCF है 18 से भी छोटा है और 48 से भी छोटा है और ये इन दोनों नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड करेगा क्योंकि ये फैक्टर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और फैक्टर की डेफिनेशन ही यही है द नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर कम्प्लीटली एग्जैक्टली तो ये नंबर दिए हुए नंबर्स से छोटा है और इन नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड करेगा इसे याद रखिएगा कि जब भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे हमें दिए हुए नंबर्स से छोटी क्वांटिटी चाहिए होगी तो हम HCF निकालेंगे इसलिए इस बात को याद रखिएगा नेक्स्ट वी हैव दिस पेयर ऑफ नंबर्स 30 and 42 अगेन वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 फर्स्ट 2 15 30 इवन नंबर है इसलिए 2 से किया अब ये इवन नंबर नहीं है तो नेक्स्ट नंबर 3 है और 3 की टेबल में 15 आता है 3 5 15 और अब 5 भी एक प्राइम नंबर है 5 1 5 इसी तरह से 42 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा 2 2 4 और 2 1 2 अब 21 इज ऑड नंबर and it comes in the table of 3 so we will divide by 3 3 7s are 21 7 is also a prime number so 7 1s are 7 now we will write these factors here 30 can be written as 2 into 3 into 5 then 42 can be written as 2 into 3 into 7 from here we are taking now to write the HCF first select the common factors you can see 2 is common and here 3 is common 5 and 7 are not common
and so the HCF is 2 into 3, which is 6, and it is smaller than the given two numbers. Next pair is 18 and 60. Again we will find the factors of 18. 2 9s are 18 and 3 3s are 9, 3 1s are 3, and for 60 we can write 2 3s are 6 and 0, 2 15s are 30, again 3 5s are 15 and 5 1s are 5. Now we write down the factors here. 18 can be written as 2 into 3 into 3, and for 60 we will write 2 into 2 into 3 into 5, taking from here. Now to write the HCF, we will select the common numbers, the common factors. 2 is common, and which one is also common? 3. 2 और 3 कॉमन है, इसके बाद बीच में ये 2 ऊपर नहीं है, 3 नीचे नहीं है, 5 भी ऊपर नहीं है, तो कॉमन नहीं है, और इसलिए HCF क्या हो जाएगा? 2 into 3 equal to 6. Got it? Next we have 27 and 63. Again we will write the prime factors of 27 and 63. So we do it here. 27, it is an odd number, तो 2 से तो डिवाइड नहीं करेंगे. फिर नेक्स्ट नंबर है 3, और 3 से ये डिविजिबल है, हमें पता है, उसकी टेबल में आता है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे डिवीजन. 3 9s are 27, 3 3s are 9, and then 3 1s are 3. Okay, then we have 63. 6 and 3, it is an odd number, it is not divisible by 2, but by 3 we check it by adding the digits. 6 plus 3 9 है, और 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 63 भी 3 से डिविजिबल है, और अब हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 2s are 6, 3 1s are 3, 21. 3 की टेबल में 21 फिर से आता है, तो 3 7s are 21. अब 7 तो प्राइम नंबर है, किसी और की टेबल में नहीं आता, तो 7 से ही डिवाइड करेंगे. 7 1s are 7. Now we note down these prime factors. 27 can be written as 3 into 3 into 3, and 63 will be written as 3 into 3 into 7 from here. Now it's easy to find the common factors. 3 हो गया एक कॉमन फैक्टर, दूसरा कॉमन फैक्टर 3 है, और हाईएस्ट कैसे मिलेगा हमें? दोनों को मल्टीप्लाई करके. ये तो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए इनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा. तो 3 into 3, it is 9. 9 is the HCF of 27 and 63. Got it? Next we have 36 and 84. Again we will find the prime factors of 36. 2 18s are 36, 2 9s are 18, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. Okay. Next we have the number 84. Again we will find its factors. It is an even number, तो 2 से डिवाइड होगा ही. 2 4s are 8, 2 2s are 4. फिर से इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करते हैं. 2 2s are 4, 2 1s are 2. अब ये ऑड नंबर हो गया, और 3 की टेबल में आता है. 3 7s are 21, 7 प्राइम नंबर है, तो 7 1s are 7. अब हम इनको यहाँ लिख लेंगे. 36 को लिख सकते हैं 2 2 3 3, 2 into 2 into 3 into 3, और 84 को लिखेंगे 2 2 3 7, so 2 into 2 into 3 into 7. इसके बाद HCF के लिए कॉमन फैक्टर सिलेक्ट करेंगे. 2 is the common factor, 2 is again the common factor, and 3 is the common factor. उसके बाद ये 3 और 7 कॉमन नहीं है, और इसलिए HCF क्या होगा? अब इन तीनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से और 3 से.
ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. तो required HCF of 36 and 84 is 12. We have 34 and 102. इसको डिवीजन मेथड से करके देखते हैं. डिवीजन मेथड में हम दोनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड करते हैं कॉमन फैक्टर से. दोनों इवन नंबर्स हैं तो 2 से डिवाइड होंगे. 2 से करते हैं. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14. इसको भी 2 से करेंगे. 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2. 17 और 51 दोनों एक साथ किसी की टेबल में आते हैं. याद कीजिए, टेबल्स ज़रूर लर्न होनी चाहिए आपको. और ये दोनों एक साथ 17 की टेबल में आते हैं और 17 प्राइम नंबर भी है. तो यहाँ हम करेंगे 17 से डिवाइड. 17 1 ज़ा 17 एंड 17 3 ज़ा 51. अब 1 और 3 दोनों एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते और हम यहीं रुक जाएंगे. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और हमारा HCF क्या होगा. अब ये दोनों प्राइम फैक्टर्स जो हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें HCF मिल जाएगा. 2 × 17 इट इज़ इक्वल टू 34. तो इन दोनों नंबर्स का HCF हो जाएगा 34. आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करके आप वेरीफाई कर सकते हैं. आंसर आपको 34 ही मिलेगा. नेक्स्ट वी हैव 3 नंबर्स नाउ and we will do it with the help of prime factorization method. तो 70 के फैक्टर्स लिखा लेंगे. इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा. 2 3 ज़ा 6. मन में डिवाइड करना सीखना है हमने. अगर अभी तक भी नहीं आया है तो प्रैक्टिस कीजिए. 2 3 ज़ा 6. 1 रिमाइंडर बचेगा, उसके आगे 0 लिखेंगे तो नंबर बन गया 10 और 2 5 ज़ा 10. अब 35 तो ऑड नंबर है तो 2 के बाद अगला नंबर है 3. 3 से भी ये डिविजिबल नहीं है. 3 + 5 इट्स 8. 8 3 से डिविजिबल नहीं है तो 35 भी नहीं है. फिर 2 और 3 के बाद अगला प्राइम नंबर है 5. प्राइम नंबर्स हमने पढ़े थे 2 3 5 7 11 13, इस तरह से चलते थे. 2 से ये डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी 5 है. तो 5 से डिवाइड करेंगे. 5 7 ज़ा 35. 7 भी एक प्राइम नंबर है. 7 1 ज़ा 7. ये हो गए प्राइम फैक्टर्स 70 के. इसके बाद आते हैं 105 पे. 105 2 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है. क्या 3 से है? डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं. 1 + 0 + 5 इट्स 6 और 6 3 से डिविजिबल है तो 105 भी 3 से डिविजिबल है. और अब हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे. 3 3 ज़ा 9. 1 रिमाइंडर आएगा 15. 3 5 ज़ा 15. अब फिर से 35 आ गया. 35 तो 3 से डिविजिबल नहीं है. 5 से करेंगे. 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7. ओके. नेक्स्ट वी विल राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 175. 3 से करके देखते हैं. 5 and 7 12 and 1 13. 13 आ रहा है सम ऑफ डिजिट्स और 13 3 से डिविजिबल नहीं है तो 175 भी 3 से डिविजिबल नहीं है. फिर नेक्स्ट नंबर लेते हैं 5. 5 से तो डिविजिबल है. लास्ट डिजिट आप देख रहे हैं इसकी 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे. 5 3 ज़ा 15. 2 बचेंगे. 2 and 5 25. 5 5 ज़ा 25. ओके. Next we have 7. 5 7 ज़ा 35 and 7 1 ज़ा 7. So in this way we can write down the prime factors of 70 as 257, 2 into 5 into 7. Then 105, it can be written as 357, 3 into 5 into 7. And then 175 can be written as 557, 5 into 5 into 7. Okay. Now we will find the common factors and now we will write the HCF of these given numbers. What will it be?
आप देखेंगे कि 5 कॉमन है तीनों में और यहाँ पे ये 7 कॉमन है। ये 2, 3 और 5 तो कॉमन नहीं है और इसलिए अब हमारा HCF क्या हो जाएगा, 5 into 7, simply multiply and it is equal to 35. Okay, once again it is less than the 3 given numbers. Remember this. Next we have these 3 numbers. Again we will find the prime factors of 91. Prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. ठीक है, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ऑड नंबर है, 3 से होगा, 9 + 1 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 91 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, लास्ट डिजिट इसकी न तो 0 है न 5 है। इसके बाद आता है 7, तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं। 7 1 7, 2 बचेंगे, 2 and 1 21, 7 3 21, yes, 7 13 91. If you know the tables then you can write it directly also. Next 13 is again a prime number, so we will write 13 1 13. ये हो गए प्राइम फैक्टर्स 91 के। इसके बाद 112, ये तो इवन नंबर है और 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 5 10, 11 को डिवाइड कर रहे हैं पहले हम, 2 5 10, 1 बचेगा, 1 and 2 12, 2 6 12। इसके बाद फिर से इवन नंबर है, 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14 और लास्ट में 7 1 7। ये हो गए प्राइम फैक्टर्स 112 के। इसके बाद 49 के फैक्टर्स, और 49 हमें पता है किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में, और 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम 7 से ही स्टार्ट करेंगे। 7 7 49 एंड 7 1 7। अब तीनों के प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिख लेते हैं एक साथ। 91 है 7 into 13, 112 के फैक्टर्स हैं 2 2 2 2 एंड 7, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 7 and then 49, it is again 7 into 7. What am I trying to write is, जो कॉमन फैक्टर है उसको ऊपर नीचे एक वर्टिकल लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं नहीं लिख पाई पर हम फिर भी देख पा रहे हैं कि 7 जो है वो कॉमन फैक्टर है तीनों में। इसके अलावा ये 2 कॉमन नहीं है, ये 13 भी कॉमन नहीं है और 7 भी कॉमन नहीं है, और इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही नंबर है तो प्रोडक्ट तो करेंगे नहीं, सीधे सीधे HCF हो गया हमारा 7. ओके, नेक्स्ट वी हैव 18, 54 and 81. अगेन लेट अस फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18. बहुत बार कर चुके हैं। 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3. इसके बाद 54 के फैक्टर्स करेंगे, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 7 14, 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 9 अगेन 3 3 एंड 3 1. ओके, देन 81, ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, क्या ऐड करिए, 8 और 1 9, 9 3 से डिविजिबल है तो 81 भी है। अब आप देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स कितने काम आ रहे हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने में। तो 8 + 1 9, 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसे भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 6 आएगा पहले, 2 बचेंगे, 21, 7 21, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है ये, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम इनको। 18 को हम लिखेंगे 2 3 3, 2 into 3 into 3, ठीक है। इसके बाद 54 के फैक्टर्स लिखेंगे, 2 और 3 3 3, 2 3 3
and 3 once again. Then we will write the factors of 81. They are all 3. So 3 into 3 into 3 into 3. Now we can write the HCF. For this, first of all select the common factors. What are they here? This 2 is not common. 2 जो है 18 और 54 का तो फैक्टर है, पर 81 में नहीं आ रहा है, तो 2 को हम कॉमन नहीं लेंगे. तीनों में कॉमन आना चाहिए और ये सिर्फ 2 में ही कॉमन आ रहा है, तो इसे नहीं लेंगे. ये 3 कॉमन है, तीनों में आ रहा है, और ये 3 भी कॉमन है, तीनों में आ रहा है. लेकिन ये 3 2 नंबर्स में तो आ रहा है, लेकिन 18 में नहीं है, और इसलिए इसे भी हम नहीं सिलेक्ट करेंगे. और HCF हो जाएगा इन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट. 3 3s are 9. So 9 is the HCF of these 3 numbers. Next, 12, 45 and 75. Again we will find the prime factors of 12. 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. Okay. 45 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्या 3 से होगा? ऐड करके देखते हैं. 4 + 5 9. 9 3 से डिविजिबल है और इसलिए 45 भी होगा. तो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1s are 3, 1 बचेगा. 15, 3 5s are 15. फिर से 3 से डिवाइड होगा. 3 5s are 15, 5 1s are 5. और 75 के भी फैक्टर्स लिख लेंगे हम. 75 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है. क्या ऐड करते हैं? 7 + 5 it's 12, और 12 3 से डिविजिबल है, और इसलिए 75 भी 3 से डिवाइड होगा. 3 2s are 6, 1 बचेंगे. 15, 3 5s are 15. 25 तो सिंपल 5 की टेबल में ही आता है. 5 5s are 25 and 5 1s are 5. Now we will write the prime factors all together. 12 के फैक्टर्स हो गए आपके 2 2 3, 2 2 and 3. 45 के फैक्टर्स हैं 3 3 5. So we write here 3 3 and 5. और अब आप देखिए यहाँ पर ये 3 जो है 3 के नीचे लेने से हमें कॉमन लेने में इजी रहता. इस तरह से लिखेंगे अगर हम, तो कॉमन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको दोबारा लिखेंगे. ऐसे ना लिख करके इस तरह से 3 into 3 into 5. Next we have the number 75. इसके फैक्टर्स हैं 3 5 and 5. तो 3 5 and 5. Now you can see we are getting this common factor 3 in a vertical line. एक सीधी लाइन में मिल गए कॉमन फैक्टर्स जो है 3 यहाँ पर. इसलिए इसको इस तरह से लिखा है कि कॉमन फैक्टर एक के नीचे एक आ जाए तो सिलेक्ट करने में इजी रहता है, ढूंढने में भी इजी रहता है. और बाकी फैक्टर्स तो कॉमन नहीं है. 2 सिर्फ 12 में है, इन दोनों में नहीं है. ये 3 जो है ऊपर नीचे नहीं है, और 5 45 और 75 का तो फैक्टर है लेकिन 12 का नहीं है. तो सिंपली वी हैव द HCF एज द नंबर 3. Only 3 is the common factor. So this was your question number 1. Next we take up question 2. What is the HCF of two consecutive numbers? What do you mean by this word consecutive? Numbers which come one after the other in a continuous order. लगातार आने वाले numbers को हम consecutive numbers कहते हैं. जैसे एक नंबर लिया हमने 13, तो अगला नंबर जो इसके बाद आएगा 14. तो 13 और 14 हो गए consecutive numbers. तो लगातार आने वाले numbers consecutive numbers का हमसे यहाँ पर HCF पूछ रहे हैं. कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, से 5 and 6. We find the factors or the HCF of 5 and 6. Okay, these two are consecutive numbers. उसके लिए पहले हम 5 के फैक्टर्स लिखते हैं. फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे कि इनका HCF क्या है. फैक्टर्स ऑफ 5 क्या हो गए? प्राइम नंबर है तो सिंपली 1 और 5 दो ही होंगे. प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ. इसके बाद हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 6. वो हमें पता है 1
2, 3 और 6. नाउ यू कैन सी द कॉमन फैक्टर्स. क्या हो गए कॉमन फैक्टर्स? आप देखेंगे कि सिर्फ 1 ही है जो कॉमन है और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं. तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है. और अब HCF क्या होता है? HCF होता है कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा हो. तो HCF क्या हो जाएगा? इन सब में सबसे बड़ा कौन हुआ? क्योंकि एक ही नंबर है तो HCF भी 1 ही हो जाएगा. यही सबसे बड़ा हो गया. सिंगल नंबर है तो बड़ा भी यही हो गया और तो कोई है ही नहीं कंपैरिजन के लिए. तो HCF क्या हो गया? 1 हो गया. तो एक्चुअली ये दोनों नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होता है 1. और ये को प्राइम नंबर्स हैं. को प्राइम नंबर्स का HCF 1 होगा हमेशा. ये याद रखिएगा क्योंकि और कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है. आप देखिए 5 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 तो हर एक का फैक्टर होता ही है और वो कॉमन है. सो वी राइट हियर द HCF ऑफ 2 consecutive numbers is 1 always. Remember this. Next we have to find the HCF of 2 consecutive even numbers. एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और इनमें आप देखेंगे 2 का गैप है. एक बार लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 देन 14 इस तरह से. अब इनमें से कोई भी 2 सिलेक्ट करेंगे. 2 कोई भी 2 ले लेते हैं हम. मान लीजिए 8 और 10 ले रहे हैं. इनका HCF ढूंढना है. याद रखिए HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर और सबसे बड़ा. आप देखते ही बता सकते हैं इनमें कॉमन क्या है. 1 तो सब में कॉमन होता ही है. क्या कोई और नंबर भी है जो कॉमन है इन दोनों में? देखिए ध्यान से. ये दोनों इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर्स 2 के मल्टीपल होते हैं. इनका एक फैक्टर 2 भी होता ही होता है. तो इसलिए इनका HCF क्या नज़र आ रहा है? 2. क्योंकि 2 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में. 2 के बाद अगला इवन नंबर 4 होता है लेकिन 4 इनका HCF नहीं हो सकता क्योंकि इनमें डिफरेंस ही 2 का है. 4 जंप्स होती, 4 का डिफरेंस होता तो हम 4 भी सोच सकते थे. यहाँ तो डिफरेंस 2 का ही है तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 2 ही होना चाहिए. So the HCF of 2 consecutive even numbers is 2 and we take one example. HCF of 8 and 10 we are taking. We will write the answer first. We write the factors of 8. क्या होते हैं? 1, 2, 4 और 8 ये फैक्टर्स होते हैं 8 के. फिर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10. तो 1 हो गया, 2, 5 और 10. तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं तो 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है. तो कॉमन फैक्टर्स आपके 2 हो गए, 1 और 2. और अब इनमें भी हाईएस्ट, H स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट. हाईएस्ट कौन हो गया? 2. ये हो गया हाईएस्ट और इसलिए इनका HCF क्या है? 2. तो यहाँ पे आंसर आएगा 2. ऐसे ही आप कोई भी 2 इवन नंबर्स ले लीजिए लगातार एक के बाद एक आने वाले. उनमें 2 तो कॉमन होगा ही क्योंकि वो इवन है तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही. 2 के मल्टीपल वो है ही और इसलिए कोई भी 2 नंबर्स ले लीजिए लगातार उनका HCF 2 होगा. नेक्स्ट वी हैव 2 consecutive ऑड नंबर्स. इनका HCF निकालना है. ऑड नंबर्स एक बार ये भी लिख लेते हैं. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये सारे ऑड नंबर्स हैं. और कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले लगातार. कोई भी 2 ले लेते हैं, 11 और 13 ले लेते हैं. ठीक है. तो अब इनका HCF क्या होगा? 11 और 13 क्या ये एक साथ किसी की टेबल में आते हैं? क्या कुछ भी इनमें कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं. तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन न दिखे तब भी एक नंबर तो ऐसा है जो सभी का फैक्टर होता है और वो कौन सा नंबर है? 1. और ऐसे नंबर्स जिनमें कुछ और कॉमन न दिखाई दे तो भी 1 उनका कॉमन फैक्टर है और वही उनका HCF कहलाता है. तो the HCF of 2 consecutive odd numbers is 1. We can check this
by taking one example. Let us find the HCF of, say, two numbers. Let us take 9 and 11. Okay, 9 and 11. First of all, we will find the factors of 9. They are 1, 3 and 9. We know this. Then we write the factors of 11. They are 1 and 11 only because it is a prime number having only two factors. Now we write down the common factors. What are they? Simply 1. Only one single number and it is 1. अब क्योंकि एक ही कॉमन फैक्टर है तो हाईएस्ट भी तो यही हुआ ना, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये भी तो 1 ही होगा. और आप देखेंगे कि कोई भी दो ऑड नंबर्स ले लीजिए कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और इसलिए उनका HCF 1 कहलाएगा क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 3. HCF of co-prime numbers. We just now discussed that two consecutive odd numbers, they are also co-prime. इनका भी common factor, highest common factor 1 है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? 9 और 11 co-prime numbers जिनमें एक ही common factor है. अब यहाँ पे उन्हीं co-prime numbers की बात हो रही है. HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization. 4 के फैक्टर्स फाइंड आउट हुए 2 इंटू 2, 15 के फैक्टर्स लिखे गए 3 इंटू 5. सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, अब आप देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. 2 इसमें नहीं है और 3 और 5 4 में नहीं है, तो कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है. सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0. इज द आंसर करेक्ट? अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या HCF 0 होगा? क्या ये आंसर सही है? Is this answer correct? If not, what is the correct HCF? We just now discussed that which number is common in every case. First we take that if 0 is the HCF, suppose if 0 is the HCF, we have 4 equal to 2 into 2 and 15 equal to 3 into 5. अगर हम HCF 0 लेते हैं तो इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर हो गया, दोनों का फैक्टर है, 4 का भी और 15 का भी. तो दोनों में एक बार लिख कर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? ये तो 0 बन जाएगा और ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. 4 इक्वल टू 0 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सेंटेंस या स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाएगा. तो एक्चुअली 0 तो फैक्टर ही नहीं है, तो यहाँ जो हमने लिखा है ये गलत है. द आंसर इज रॉन्ग. तो फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? क्योंकि कॉमन कुछ तो होना ही चाहिए ना. और हमने पढ़ा था कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों नंबर्स के फैक्टर्स को. तो अब आप देखो वैल्यू भी चेंज नहीं हुई. 2 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 4 और 3 5 ज़ा 15, 1 ज़ा 15. तो वैल्यू भी सेम रही. और कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है दोनों में? आप देखेंगे 1 कॉमन है और इसलिए HCF और 4 and 15 is 1. The HCF of any two co-prime numbers is 1. Remember this. To generalize, HCF of any two co-prime numbers, क्योंकि वो किसी की टेबल में एक साथ नहीं आ रहे हैं तो कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं उनमें, तो कॉमन कौन बचा? सिर्फ 1. तो HCF of any two co-prime numbers is 1. With this, your exercise 3.6 is complete based on highest common factor of given numbers. In our next class, we will take up the lowest common multiple, and it is also very important. Till then, try to find the HCF of some of the numbers that you choose on your own. Till then, goodbye.